یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یزدان؟ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ دلہن بنی تمکنت نے حیرت و بے یقینی سے استفسار کیا تھا۔ میرے دو بچے بھی ہیں۔ اس انکشاف کو سن کر تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات اس کا شوہر نہ صرف اپنی شادی بلکہ 7 سال کے جڑواں بچوں کا تذکرہ بڑے آرام سے کرتا اسے دہلا کر رکھ گیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکا! دھوکا کیسا؟ آپ کے گھر والے اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اس پر آسمان توڑتا وہ خوشبوؤں سے مہکتے پھول پنکھڑیوں سے سجے اس شاہانہ ماسٹر بیڈ روم کی گول شیپ بیڈ کے عین وسط میں دلہن بنی بیٹھی وہ مہاجبین شرمائی گھبرائی سی مسلسل اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ جبھی کھٹکے کی آواز کے ساتھ کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا نزدیک تر چلا آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کی آڑ میں مکمل چھپا ہوا تھا، جبکہ وہ آنے والے وقت کی گھبراہٹ کے باعث مزید خود میں ہی سمٹ سی گئی تھی۔ وہ بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا قدم قدم چلتا نزدیک تر چلا آ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سنو لڑکی، آواز میں بلا کی سردگی تھی، وہ بے ساختہ دل تھام گئی۔ پہلے اپنے منہ پر سے یہ تمبو تو ہٹاؤ۔ وہ ذرا خفا ہوا، مقابل کا دل سہمی چڑیا کی طرح لرزا تھا۔ گھبرا کر خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا اور مقابل اس حسن کی مورت کو دیکھنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ شادی صرف ڈیڈ کے اصرار پر کی ہے، ورنہ میرے لیے میرے دونوں بچے ہی بہت ہیں۔ یہ کیسا انکشاف تھا! اتنے جھٹکے سے گردن اٹھا کر مقابل کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ وجاہت و شجاعت کا پیکر تھا۔ بچے؟ لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں نے تمہیں میرے بچوں کے متعلق آگاہ نہیں کیا؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ بلا شبہ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، مگر وہ ان حسین چہروں کی حقیقت سے خوب واقف تھا۔ نہ نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر بہتے چلے گئے تھے۔ کچھ انوکھا نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور ہاں، خبردار، جو اس کمرے کی کوئی بھی بات باہر گئی یا تم نے میری اولاد کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ انگت شہادت اٹھا کر سخت تنبی لہجے میں گویا ہوا تھا، ساتھ ہی شیروانی کے بٹن کھینچ کر کھولتے ایک طرف کو رکھی تھی۔ اب کیا ساری رات بن بن کر گزارنی ہے؟ اٹھو، یہ لباس چینج کرو اور پلیز یہ کمرہ سمیٹو۔ مجھے ان سب چیزوں سے سخت قسم کی کوفت ہو رہی ہے۔ وہ شدید بیزاری ظاہر کرتا خود واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کتنی ہی دیر سکتے کسی کیفیت میں گری رہی تھی، پھر اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ بیڈ سے اٹھتی وہ قدم قدم چل کر سنگھار آئینے کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آئینے میں نظر آتا اپنا بنا سورا سا عکس دیکھ اس کی دھیل جیسی گہری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، دل تکلیف سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا واقعی پھوپھی جان ٹھیک کہتی تھی کہ وہ ایک سبز قدم سیاہ بخت لڑکی ہے؟ وہ نہ جانے اور کتنی دیر یوں ہی روتی رہتی جب اکھٹکے کی آواز پر وہ چوکی جو سفید شلوار کرتے میں ملبوس شاید سونے کے ارادے سے بیٹھ کی جانب پڑ رہا تھا۔ پھر ایک لمحے کو ٹھہرا۔ لڑکی، تم ابھی تک ایسی ہی کھڑی ہو کہ ساری رات یہیں کھڑے ہو کر ٹسوے بہانے کا ارادہ ہے؟ وہ شدید بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ کیا میرے گھر والے آپ کی پہلی شادی اور بچوں کے بارے میں جانتے تھے؟ وہ روندے ہوئے لہجے میں استفسار یا گویا ہوئی۔ آئینے سے نظر آتا عکس دیکھ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گیا تھا۔ اس کا سوگوار حسن کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا، مگر وہ یزدان سکندر تھا۔ بڑے بڑوں کو اپنے سامنے زیر کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہاں، اور پلیز یہ تام جھام جلدی اتار کر لیٹ جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے تمہیں۔ کل صبح سے میرا، بچوں کا اور ڈیڈی کا ناشتہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
وہ اسے ہدایت جاری کر رہا تھا، جیسے وہ پہلی رات کی دلہن نہیں بلکہ ملازمہ ہو، جبکہ وہ اپنے گھر والوں کے اس دھوکے پر صدمے سے دوچار تھی۔ بھاری قدموں سے لہنگا سنبھالتی وہ سیدھی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جہاں وہ اپنا غم غلط کر سکتی تھی، جبکہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر لیٹے یزدان نے سپاٹ نگاہوں سے اس لڑکی کی حرکتیں دیکھی تھیں، پھر زر جھٹک کر آنکھیں موند گیا، کیونکہ وہ کسی قسم کا ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج اپنے جوبن پر تھا، شیشے کے قد آور کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر خوابگاہ میں داخل ہوتی، بیڈ پر سوئے نفوس کے چہرے پر پڑتی نیند میں خلل ڈالنے کا کام کر رہی تھی۔ وہ شدید اکتاہٹ کا شکار تھا۔ جب ہی اس نے جھلبلا کر کروٹ بدلی تو ہاتھ کسی نرم وجود سے جا ٹکرایا تھا۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھا تھا، مندی مندی سی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہ اپنے لاپرواہ وجود سے بے نیاز اس کے بے حد نزدیک لیٹی خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ سفید رنگ سادے سے سوٹ میں اس کی دودھائی رنگت کھل سی رہی تھی، جبکہ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر آدھا منہ کھولے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے نیند کی وادیوں میں غرق تھی۔ کیوٹ! وہ بے ساختہ ہی مسکرایا تھا مگر پھر گڑبڑا کر دور ہوا تھا۔ اس سے تو لگا تھا وہ خود ہی صوفے پر سو جائے گی، مگر اس بیڈ پر اس کی موجودگی نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ جبھی کسی نے دروازہ دھڑا دھڑ بجایا تھا، وہ جو نیند میں غرق تھی گڑبڑا کر اٹھ گئی تھی، جبکہ اپنے سامنے یزدان سکندر کو خود کو دلچسپی سے تکتا پا کر وہ پل میں سر پاؤں سرک پڑی تھی۔ ریلیکس بچے ہوں گے، وہ اپنی شرٹ درست کرتا متوازن لہجے میں بولتا دروازے تک گیا تھا، اور توقع کے عین مطابق دونوں بچے اسے ڈیڈی کہتے پاؤں سے لپٹے تھے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ڈیڈی۔ وہ دونوں 7 سال کے لگ بھگ شاید جڑواں بچے تھے۔ پیچھے سے دلچسپی سے دیکھتی تمکنت کو تو یہی لگا تھا۔ وعلیکم السلام ڈیڈی کی جان۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ یہ کیوٹ سی ہماری ماما ہے۔ ان دونوں کی اشتیاق بھری نگاہیں پیچھے بیٹھے وجود پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ یس۔ وہ دونوں کو اپنے ساتھ لیے بیڈ پر آیا تو تمکنت اس کی رات کی تنبیہ یاد کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ السلام علیکم میم۔ وہ دونوں ہی ویل مینرڈ بچے تھے، جبکہ تمکنت اتنے بڑے بڑے بچوں کو دیکھ مسلسل دل میں جل کڑ رہی تھی۔ اس کے نصیب میں ہمیشہ اترن ہی آئی تھی، اور آج بھی اترن ہی اس کا مقدر بنی تھی۔ واہ تمکنت بختیار! شکل کے ساتھ اگر بخت بھی اتنا ہی اچھا ہوتا تو کیا بات تھی؟ کیا ہم آپ کو حق کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں محبت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ تذبذب کا شکار لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو صاف کہہ دیں تاکہ ان کے دل میں خواہشات جنم نہ لے۔ یزدان کی سرد آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ نہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ سب کچھ میرے لیے بہت شاکنگ ہے۔ اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو شاید میں مینٹلی پریپیئر ہوتی، وہ سچے دل سے بولی تھی۔ یزدان کو بھی اس کا موقف درست لگا تھا۔ یہاں سراسر آپ کے گھر والوں کا قصور ہے۔ ویل، ماما سے مل لیں۔ اب آپ لوگ جاؤ، ہم بریک فاسٹ ساتھ ہی کریں گے۔ وہ اوکے ڈیڈی کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ آپ بھی ریڈی ہو جائیں۔ اس کا رویہ رات سے یکسر مختلف تھا۔ وہ حیران سی اس کی پشت دیکھے گئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا۔ وہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ واش روم سے باہر آیا تھا، جبھی وہ بھی تیزی سے اٹھتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ اس نے کنکھیوں سے اس لڑکی کی کارروائی ملاحظہ کی تھی۔ وہ شاور لے کر روم میں واپس آئی تو بالکنی سے اس کے غصہ کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید کسی پر خفا ہو رہا تھا۔ تمکنت سہم سی گئی تھی اور تیزی سے ہاتھ چلاتی اپنے بال خشک کر رہی تھی، جبھی وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ لڑکی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آج سے گھر کی ساری ذمہ داریاں تمہارے سر پر ہیں۔ تمکنت نے حیران و پریشانی سے اسے دیکھا تھا، جو پل پل میں روپ بدل رہا تھا۔ گرگٹ کہیں کے!
वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। यज़दान ने खुद को हैरत से देखती, फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाता देख आईब्रो उठाई। आपने कुछ कहा है क्या? वो इस्तफ़सारिया गोया हुआ वो गड़बड़ाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी तो सिट्टी-बिट्टी गुम हो गई थी। गुड। कोशिश भी मत करना कुछ कहने की। वो गुस्से से बोलता रूम से निकल गया था, जबकि वो अपना मुँह लेकर रह गई थी। वो नीचे पहुँची जहाँ इसके ससुर इसी के मुंतज़िर थे। खुशामदीद बच्चे। उन्होंने इसको देख खुश असलूबी से पुकारा था, जो मुस्कुरा कर इनके सामने सर झुका गई थी। इनसे मिलिए। ये दोनों हमारे घर की रौनक, हमारी जान, हमारे क्यूट से पोते अरमान सिकंदर और शामिर सिकंदर हैं। इन्होंने लगे हाथों पोतों का तारुफ कराया था। हम तो मामा से मिल भी लिए। इन्होंने चहक कर कहा था। इन तमाम अरसे में यज़ान बिल्कुल खामोश बैठा था, जैसे वहां मौजूद ही ना हो। वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे शहजादे अपनी मॉम से मिल लिए हैं। वो खुश असलूबी से बोले। आप बैठे बेटा। वो निशत संभाल गई जब ईसप ने नाश्ता शुरू किया था। शादी को 1 माह गुजर गया था। यज़ान का रवैया रोज वैसे ही पहले दिन जैसा था। वो बिल्कुल खामोश था, अलबत्ता तमकीनत अपने घर वालों से सारे ताल्लुक तोड़ चुकी थी। वो वैसे ही इससे जान छुड़ाना चाहते थे। ऐसे में इस सौदेबाजी की शादी की हकीकत आश्कार होने के बाद तो इसे इनसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं था। इसने इसी को अपना नसीब मान लिया था। अलबत्ता अब वो बच्चों से काफ़ी अटैच्ड हो गई थी। अगर यही नसीब था तो यही सही। वैसे भी इसके पास कोई चॉइस नहीं थी। मामा, हम आँख मचोली खेलते हैं। वो दोनों इसकी आँख पर पट्टी बाँधकर गोल-गोल घूम रहे थे। जभी कार पोर्च में यज़दान की गाड़ी आकर ठहरी थी और अपने दोनों बेटों के साथ इसे खेलता देख वो खुद भी वहीं आ गया था, जो मुस्कुराती हुई इनके साथ खेल रही थी। अरमान, शामिर, कहाँ हो आप? वो दोनों बाप के इशारे पर खामोशी से साइड हो गए थे, जबकि वो इन्हें पकड़ने की कोशिश में शामिर को पकड़ चुकी थी। पकड़ लिया, मगर दोनों की जगह किसी और को महसूस कर वो फौरन पीछे हुई। इससे कब्ल कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ती, ये जान इसकी कमर में हाथ डालकर संभाल चुका था। आराम से। इस आवाज और कुर्बत पे वो पल में सुर्ख पड़ी थी। वो बुरी तरह गड़बड़ाई, जबकि वो इसकी रोशन आंखों में झांकता एक लम्हे को ठहर गया था। मामा ने बाबा को पकड़ लिया। अब आपकी बारी। अपने बच्चों की आवाज पर वो दोनों ही गड़बड़ा कर होश में आए थे। मैं डिनर की तैयारी कर लूं। वो फौरी वहां से रफू चक्कर हुई थी। रात के खाने का एहतमाम अच्छे तरीके से किया गया था। पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद सिकंदर साहब ने बगौर अपने लाडले को देखा था, जो बस बिस्नेस में गुम होकर रह गया था। फिर आप दोनों ने क्या सोचा है? वो चौंका। किस बारे में बाबा? इसने हैरत से इस्तफसार किया। भाई, नई-नई शादी हुई है आपकी, हमारी बहू को कहीं हनीमून पर लेकर जाएं। पानी पीती तमकीनत को बुरी तरह से फंदा लगा था। अल्लाह खैर, ध्यान कहाँ है आपका? वो एकदम ही परेशान होता इसकी कमर सहलाने लगा था, जिसका चेहरा मुसलसल खांसने के बायस सुर्ख अंगारा हो गया था। वो वो मैं शदीद बौखलाहट में इसने कुछ कहना चाहा, मगर यज़दान को मुसलसल अपनी कमर थपकते देख वो सिकंदर साहब के सामने बिला वजह शर्मिंदा हो गई थी। बाबा देखें, मामा के गाल कितने रेड हो रहे हैं, बिल्कुल मेरे चीक्स की तरह। शामीन मान का सुर्ख चेहरा देख एक्साइटेड सा बोला। तो शामीन ने आज बगौर इसके चेहरे का जायजा लिया था। मलाइम जैसी नर्म जिल्द जो खांसने से सुर्ख पड़ गई थी, झील जैसी आंखें, नैन कटोरों में पानी भराया था, भरे भरे गुलाबी होठ, बिलाशुबा वो बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। बाबा, मेरी तरह मामा के चिक्स पर किस कर लें, वो ठीक हो जाएंगी। इस बार वो दोनों ही एक दूसरे को देख बुरी तरह से सटपटाए थे, जबकि सिकंदर साहब का फलक शगाफ कहका बुलंद हुआ था। डैडी, यजान ने तमकीनत को भौंकलाते देख नाराज निगाहों से देखा था।
تو وہ लबदबा गए। खैर मैं कह रहा था आप दोनों का हनीमून का क्या प्लान है? वो एक बार फिर सवालिया गोया हुए। डैडी आपको तो मालूम है, मैं अभी बिज़नेस में उलझा हुआ हूँ। फिर इन दोनों का स्कूल भी है। वो हमेशा की तरह बहाना गढ़ गया था। बिज़नेस की तुम फ़िक्र ना करो, अभी मैं ज़िंदा हूँ। दूसरी बात कि बच्चों के साथ हनीमून पर कौन जाता है? इन्होंने बेटे को खश्मगीन निगाहों से घूरा था। आपको मालूम है, मैं अपने बच्चों के बगैर कहीं नहीं जाता। इसने एक बार सपाट निगाह साथ बैठी तमकीनत पर डाली थी, जो सर प्लेट में गुसेड़े खाने में मसरूफ थी। बच्चे अपने दादा के साथ बहुत खुश चलेंगे। तुम अपनी बीवी को वक्त दो, इसके साथ वक्त गुजारो, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने का सोचो। तमकीनत की रंग सुर्ख अंगारा हो गई थी। मेरे लिए मेरे दो बेटे ही काफी हैं। तमकनत के दिल पर घूंसा सा पड़ा था। इतनी तजलील, यजदान। इन्होंने बहू के तारीख पड़ते चेहरा देख बेटे को घूर कर देखा था। डिनर के बाद मेरे रूम में आए। तमकीनत बेटा, आप मेरे लिए कहवा भिजवा दीजिएगा। इस बार वो संजीदा निगाहों से देखते अपने रूम में चले गए थे। दोनों बच्चे भी खाना फिनिश करते मेज छोड़ गए थे। तमकीनत भी घबरा कर उठने लगी थी, जभी इसने इसकी कलाई थाम कर रोक लिया था। आप कहाँ जा रही हैं? इसने आईब्रो उठाए। वो अंकल के लिए कहवा। इसने नजरें झुकाए जवाब पेश किया। बैठ जाएं, पहले खाना ढंग से खा लें। हालत देखिए अपनी, लगता है किसी कहरज़दा इलाके की रिहायशी हो। वो वैसे ही मज़ाहिया अंदाज में बोल गया था जबकि तमकीनत की आंखों में आंसू आ गए थे। वो इसकी बेबसी और गुर्बत का मजाक उड़ा रहा था। हे व्हाट हैपेंड? रो क्यों रही हैं आप? वो हैरान होता कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ था, जो अब सर झुकाए खड़ी सूसू कर रही थी। क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? इस बार वो संजीदा हुआ। इसने नफी में सर हिलाया। मेरी कोई बात बुरी लग गई है? ओके, सॉरी। इसने सरेंडर करने वाले अंदाज में हाथ उठाए थे। तमकीनत ने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। अजीब शख्स था, धूप छांव सा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही मामा की याद आ गई थी। इसने बेदर्दी से आंसू रगड़ते बहाना गढ़ा था। सच बोल रही हैं? अब वो इसकी आंखों में झांक रहा था। अ- एक बात पूछूं? इस बार यज़दान संजीदा था। जी जी, वो हकलाई। आप मेरे साथ बाहर जाना चाहती हैं? इसके बालों की लटों को कान के पीछे अड़ास से सवाल किया था। नहीं तो। वो फौरन इनकारी हुई। इसने अचंभे से इसकी जानिब देखा था। क्यों? आप मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहती हैं? इस बार इसकी कमर के गिर हिसार कायम करता वो सवालिया गोया हुआ था। तमकीनत यकदम होश में आई थी। दिमाग में शादी की रात के इसके सारे तल्ख जुमले घूम गए थे। आपका मुझसे ये सवाल नहीं बनता। वो मजबूत लहजे में बोली तो वो बुरी तरह से ठटका था। क्या मतलब है इस बात का? इसने आईब्रो उठाए। छोड़े मुझे, अंकल इंतजार कर रहे होंगे। वो पुरजोर मज़ाहमत करती वहां से निकलती चली गई थी, जबकि वो सोचों में डूबा खड़ा था। सिकंदर साहब स्टडी में मौजूद थे जब वो खटके की आवाज के साथ अंदर आया था। यस दैट, आपको कुछ बात करनी थी। वो सवालिया गोया हुआ। बैठे। वो एक गहरी सांस भरता चेयर घसीट कर बैठ गया था। बेटा, आप तमकीनत को हकीकत बता क्यों नहीं देते? वो बच्ची बहुत सादा और मासूम है। इस तरह इसके जज्बात की नाकदरी ना करो। तुम्हारी और इसकी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैंने इसे कभी तुम्हारी मौजूदगी में हंसता मुस्कुराता नहीं देखा। बल्कि तुम्हारी शक्ल देखकर तो वो ऐसी हो जाती है जैसे मौत का फरिश्ता देख लिया हो। इस बार यज़दान ने नाराज निगाहों से बाप को देखा था। हाँ, आपकी बहू को डंडे और ब्लेड की मार देता हूँ ना मैं, जो वो मुझे देखकर खौफजदा हो जाती है। यज़दान को इसका खुद से भागना और घबराना याद आया था। माँ सिर्फ हाथ की नहीं होती, लहजों और रवैयों की भी होती है। और वो माँ सीधा इंसान के दिल पर लगती है। तुम हमेशा बच्चों का जिक्र करके इसकी हक तलफी करते हो।
मत भूलो, अपनी औलाद के हो जाने के बावजूद भी मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत कम नहीं होता। औलाद इस रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। तुमने इसे अजियत दे रखी है कि ये बच्चे तुम्हारी पहली बीवी की औलाद हैं। वो इन्हें माँ बनकर पालने की कोशिश कर तो रही है, और क्या जान लोगे इसकी। इस बार इन्होंने बेटे को तबीयत से लताड़ा था। कम ऑन बाबा, मेरे बच्चे 7 साल के हैं और वेल ट्रेन्ड भी। वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्हें वो साहिबा पाल पोस कर जवान करने में सरगर्दान है। मेरे बच्चे पहले ही सब सीखे सिखाए हैं। इसे बाप का यूं कहना बुरा लगा था। तमकीनत की तरफ से भी दिल खराब हुआ था। शायद इसने ही डैडी को शिकायत लगाई थी। बच्चे बच्चे होते हैं, और तुमने देखा नहीं है वो तमकीनत से कितना अटैच्ड हो गए हैं। वो भी बच्चों को भरपूर वक्त देती है, बल्कि वो सारा वक्त ही इन बच्चों को देती है। मगर कब तक? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, यकीनन तुमने इस बच्ची को इसका हक नहीं दिया है अभी तक। वो बड़े ही बुलंद अंदाज में बोले थे, और वो बुरी तरह गड़बड़ाया था। डैडी, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अब वो दीवार को देख रहा था। मानता हूँ, मगर मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, इस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यतीम बच्ची है वो, आगे पीछे कोई नहीं है। तुमसे सवाल करने वाले इसके बाप भाई नहीं हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम इसकी हक तलफी करोगे। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इन्होंने बेटे को आईना दिखाया था। डैडी, इस बार इसने शिकवा किना निगाहों से देखा था। तुमने कहा था कि तुम हमारी क्लास की लड़की से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इन बच्चों को अपनी औलाद वाला प्यार कभी नहीं दे सकती। इसलिए मैंने इतनी मुश्किल से ये बच्ची को चुना है। सारी जिंदगी महरूमियां देखी हैं इसने। माँ बाप के प्यार को तरसती रही है। रिश्तों के नाम पर सौदेबाज लोगों से पाला पड़ा है इसका। मुझे लगा था कि ये बच्ची मेरे पोतों की आंखों में वो हसरत देख कभी इनके साथ ज्यादती नहीं होने देगी। और देखो, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। अगर तुम इनके बाप हो तो वो भी इनकी माँ बन गई है तो क्या तुम इसे अपनी बीवी नहीं समझ सकते? यज़ान खामोश हो गया था। अगर इसने अपनी औलाद हो जाने के बाद मेरे बच्चों की हक तलफी की तो इसके अपने शक व शुबहात थे। तुम्हारी औलाद तुम्हारे रिश्ते को मज़ीद मज़बूत करेगी, और जब तुम इसे ये यकीन दिलाओगे कि इस दुनिया में इसका सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ मैं हूँ, तो वो तुमसे कभी दूर जाने या बेवफ़ाई का सोचेगी भी नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तुम्हारे दिल में औरत ज़ात को लेकर जो शक बैठा हुआ है, इसे निकाल बाहर फेंको, वरना तुम बहुत पछताओगे। हर औरत एक जैसी नहीं होती है। इन्होंने बेटे को आईना दिखाया था तो वो खामोश हो गया। आंखें सुर्ख पड़ गई थी। ये सच था कि इसे इस औरत ज़ात नामी बला पर ज़रा बराबर ट्रस्ट नहीं था। अब जाओ रूम में, बच्ची इंतज़ार कर रही होगी। वो जो कहवा लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी, गड़बड़ा कर साइड में हो गई। यज़ान अपनी धुन में वहां से निकलता चला गया था, जबकि वो चंद सेकंड खुद को कंपोज करती रूम में आ गई थी। आ गई मेरी बेटी, जीती रहो। और ये क्या हर वक्त काम करती रहती हो मेरा बच्चा? घर में इतने मुलाजमीन हैं, इनसे कहा करो, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने शौहर को दिया करो। और बच्चों की तरफ से आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। वो बड़े हैं, इन्हें अपना आप संभालना आता है। इसके सर पर हाथ रखते वो समझाने वाले अंदाज में बोले थे। ओके अंकल। अंकल नहीं बेटे, डैड कहा करो। वो मुस्कुरा कर वहां से निकल आई थी। वो ट्राउजर शर्ट में मलबूस बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। जब भी वो महाजबीन कमरे में दाखिल हुई थी और सीधी ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई थी। यज़दान सर झटक कर सिगरेट बुझाकर वापस रूम में आया था और बेड पर बैठ गया था। जब वो भी रूम में आई थी, एक नजर यज़ान को देखा। वो बेड के दूसरी जानिब आई थी। शादी के पहले रोज से वो दोनों बेड शेयर कर रहे थे। ये पेशकदमी भी इसकी तरफ से ही की गई थी, मगर यज़दान ने इसे दूर नहीं झटका था। वो इसकी बीवी थी, रिश्ता जिस भी नौयत का था, मगर वो हमेशा निभाने का इरादा रखता था। वो सोचों में गुम था। जब भी वो कंफर्टर खुद पर डालती, करवट के बल होती, आंखें मूंद गई थी। यज़दान कुछ देर इसकी पुश्त पर पड़ी चुटिया को देखता रहा था, फिर कुछ सोचकर इसकी जानिब खिसका था।
साथ ही एक लम्हे में इसकी कमर में हाथ डालकर रुख अपनी जानिब मोड़ लिया था। इस अचानक इब्तिदा पर वो बुरी तरह सटपटाई थी। आंखों में हैरानी दर आई थी। तुम इस बेड पर क्यों सोती हो? वो अपनी सोचों में गुम उल्टा ही सवाल कर गया था। तो फिर कहाँ लेटूं? वो हवन्नक हुई, जबकि इसे अपने बेहद नजदीक देख दिल जोरों से धड़का रहा था। मेरे पास, मेरे नजदीक। इसके कान के करीब झुककर मायना खैजी सी सरगोशी करता वो इसे भौंकला कर रख गया था। मुझे नींद आ रही है। निगाहों का रुख फेर कर इसने फौरन बहाना गढ़ा था। मुझे भी। मखमूल लहजे में बोलता वो इसकी गाल से गाल मिस करता इसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? वो शदीद बौखलाहट का शिकार थी। प्यार, वो शरारती लहजे में बोला तो वो पल में सुर्ख अंगारा हुई थी। चेहरा भाप छोड़ने लगा था। शादी की पहली रात को मैंने गुस्से में जो कुछ बोला था इसके लिए आई एम सॉरी। बस बच्चों की वजह से मैं बहुत इनसिक्योर था। बट मुझे लगता है कि एक माँ एक दूसरे को समझने के लिए बहुत था। हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी झील सी आंखों में अपनी सुरमई आंखें गाड़ता वो जज्बात से बोझल लहजे में बोला तो इसकी पलकें लरस गई थी। अगर तुम वक्त देना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। चंद साहतें यूं ही खामोशी की नजर हो गई थी जबकि वो लब चबाने में मसरूफ थी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यज़दान ने गहरी सांस भरी। ओके। इसके माथे पर बोसा देता वो करीब ही दराज हुआ था और इसका सर अपने सीने पर रखकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था, जबकि वो सांस रोके पड़ी थी। वो मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, जबकि आज वो इसकी तैयारी में हेल्प कर रही थी, जबकि वो नर्म निगाहों से इसे ही देख रहा था। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? इस बार वो झुंझलाई। किस तरह? वो शरारत से बोला था। ऐसे घूर घूर कर जैसे खा जाएंगे। इसकी कलाई पर घड़ी बांधती वो झुंझला कर बोली, जबकि इसका जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा था। क्यूट। वो इसे करीब करता इससे कब ही कोई दरवाजा धड़ाम से खोलता अंदर आया था। वो दोनों बुरी तरह से गड़बड़ाए थे। अरमान, शामिर, ये क्या हरकत है? मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि किसी के भी रूम में नॉक किए बगैर नहीं जाते हैं। तमकीनत को हफ्फज़दा सा ड्रेसिंग टेबल की चीजें इधर-उधर करता देख इसने अपने बेटों की जानिब कदम बढ़ाए थे। हम तो लाज़मी नॉक करते हैं, डैडी, बट मॉम ने कहा कि आप दोनों के रूम में हम बगैर नॉक किए आ सकते हैं। यज़दान ने नज़र उठाकर इसे देखा जो भौखलाई सी ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। ओह अच्छा, तो ये आपकी मम्मी का फरमान है। कोई नहीं, आप दोनों के साथ-साथ मम्मी को भी पनिशमेंट मिलेगी। वो ज़ुमाइनी लहजे में गोया हुआ तो दोनों ही हवन्नक होकर बाप को देखा था। आप हमें पनिश करेंगे बाबा? जी बिल्कुल, आप दोनों लॉन के 4-4 चक्कर लगाएंगे शाम में। अभी हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। वो दोनों को बाहर भेजता खुद ड्रेसिंग रूम में गया था, जहाँ वो फजूल चीजें इधर से उधर कर रही थी। रिलैक्स, आपके लिए मेरी सजा जरा अलग होगी। इसका हाथ पकड़कर रुख अपनी जानिब करता वो जुमाइनी सी बोला था, तो वो हवनक हुई। चलें, अभी नाश्ते के लिए लेट हो रहे हैं। यज़ान, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। आज रात यज़ान इसे अपने साथ डिनर पर लेकर जा रहा था। जरूर लेकर चलते अगर सुबह इनका स्कूल ना होता तो, मगर ये सिर्फ हमारा टाइम है। बच्चे वैसे भी अब सोने की तैयारी में हैं। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता मसरूफ से लहजे में बोला था, ये साड़ी मैंने आज से पहले कभी नहीं पहनी। सुर्ख रंग शेफून की साड़ी में वो बला की हसीन लग रही थी। यज़ान की नजरें बार बार भटक कर इसकी जानिब उठ रही थी। नहीं पहनी तो क्या हुआ मेरी जान, आज पहन ली है ना। एंड डोंट वरी, हम सी साइड जा रहे हैं, वहाँ हमारे सिवा कोई नहीं होगा। वो इसे रिलैक्स करता हुआ बोला, साथ ही इसकी हमराही में कदम बाहर की जानिब उठाए थे, जो अब मुस्कुरा कर इसी की जानिब देख रही थी। डिनर के बाद वो दोनों समंदर की गीली रेत पर
साथ-साथ चल रहे थे। रात का वक़्त था, पुरकैफ ठंडी हवाओं के संग साथ-साथ चलते वो अलग ही तरंग में थे। तमकीनत वो चौंकी। जी, इसे ज़रा हैरानी से इसकी जानिब देखा था। क्या आप वाक़ई दिल से इस रिश्ते को निभाने के लिए रज़ामंद हैं? इतने दिनों में वो इतना तो जान गया था कि ये लड़की वाक़ई सबसे जुदा और मुख्तलिफ थी। आपको कोई शक है क्या? इसने आईब्रो उठाए। नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे आपकी सज़ा बाकी रहती है अभी। इसे अचानक याद आया था। अच्छा, तो मेरी सज़ा क्या है? इसने इश्तियाक से पूछा था तो यज़दान ने पहले इसे देखा और फिर गाल पर उँगली रखी थी। क्या? वो समझकर भी अनजान बनी। यहाँ किस करनी होगी? इसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। ये कोई सज़ा नहीं है, वो नरोटेपन से बोली थी। सच पूछो तो मेरा आपको सज़ा देने का कोई मूड है भी नहीं। वो कहते साथ ही इसके चेहरे पर झुका था, जबकि समझ आने तक वो शर्मा कर इसी के सीने में चेहरा छुपा गई थी, जबकि इसका ज़िंदगी से भरपूर कहका गूंजा था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। वो यज़ान की संगत में खुश और मुतमईन थी। इन दिनों ही इस रिश्ते को एक मौका देकर इस रिश्ते की खूबसूरती को बचा लिया था। वो लोग इस वक्त लॉन में मौजूद चाय के मज़े ले रहे थे। आज संडे था। यज़ान घर में ही मौजूद था। दोनों बच्चे वहीं खेल रहे थे, जभी कोई औरत तनतनाती हुई वहां आई थी। यज़ान इस औरत का चेहरा देख एक लम्हे में उठ खड़ा हुआ था। सिकंदर साहब घर पर नहीं थे। यज़ान, सिकंदर, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मुझे मेरे बच्चे वापस करो, वरना मैं तुम पर केस करूंगी। तमकीनत हैरानी से इस औरत को देख रही थी। तुम्हें अंदाजा तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकाल कर फेंको इस औरत को। सिक्योरिटी, वो तेज आवाज में गुर्राया था। तुम तुम मेरे बच्चों को अपने पास रखकर अपने भाई की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो। वो चिल्लाई। मेरे भाई की जायदाद और औलाद पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। मैं अब तक तुम्हारा लिहाज कर रहा था क्योंकि तुम औरत हो, मगर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई भी लिहाज का रिश्ता रखा जाए। इस बार वो सख्त लहजे में दहाड़ा था। तमकीनत सहम कर 2 कदम पीछे हुई थी। यज़ान, सिकंदर, तुम, ये मेरे बच्चे हैं। वो एक बार फिर गुर्राई। तुम्हारे बच्चे, जिनका तुमने सौदा कर लिया था? इन बच्चों के एवज़ तुम अच्छी खासी जायदाद ले चुकी हो और इन बच्चों की कस्टडी मेरे हवाले है। अब तुम इन पर हक नहीं जमा सकती हो, समझ गई? वो शदीद लहजे में गुर्राया था तो वो यकदम खामोश हुई। ये तुम्हारी बीवी है ना? पूछो ज़रा इससे, क्या ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे भाई की औलाद को पाल लेगी? यज़ान ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच ली थीं। हाँ, पाल लेगी और पाल रही है। तुम्हें फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड्स बाहर लेकर जाएँ इस औरत को। वो सख्त लहजे में गोया हुआ था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे बच्चे हैं। बच्चे सहम कर तमकीनत से लिपट गए थे, जबकि गार्ड्स इसे घसीटकर बाहर ले गए थे। यज़ान एक गहरी सांस भरता इन तीनों की जानिब पलटा था। अरमान, शामी, बॉयज, इस तरह डरते नहीं हैं। बाबा है ना आपके पास, जस्ट रिलैक्स। इन दोनों के माथे पर बोसा देता वो इन्हें रिलैक्स कर चुका था, जबकि तमकीनत तो अभी तक सकते में खड़ी थी। ये दोनों यज़दान के नहीं, बल्कि इसके भाई की औलाद थी। तमकीनत, इन्हें रूम में लेकर जाएं। वो इसका गाल थपथपाकर खुद मोबाइल जेब से निकाल कर वकील को कॉल कर रहा था। इसका इरादा इस औरत को लगामे डालने का था और वो किसी लीगल नोटिस को देखकर ही इंसान बनकर बैठ सकती थी। बच्चों को बहलाकर सुलाने के बाद वो रूम में आई तो यज़दान बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। वो भी साथ आकर खड़ी हो गई थी। भाई की इस औरत से लव मैरिज थी, मगर इस औरत को इज्जत रास नहीं थी। शादी के 11 माह बाद अल्लाह ने इन्हें 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, जब भी भाई के एक बिजनेस पार्टनर ने इस औरत को प्रपोज किया और ये कमजोर नफ्स की औरत भाई से तलाक लेकर अपने बच्चों और शौहर को छोड़कर इस शख्स के साथ चली गई। भाई इस औरत की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
इन्हें डिप्रेशन हो गया था। एक रोज़ वो कार हादसे में अपनी जान हार गए थे और ये दोनों बच्चे जो सिर्फ़ 2 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। जब भी इस औरत को इस आदमी ने अपने मकसद में इस्तेमाल के बाद छोड़ दिया। इसे बच्चे याद आ गए क्योंकि इसे जायदाद चाहिए थी। डैडी और मैं ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए भाई की प्रॉपर्टी से 25% इस औरत के नाम करके दोनों बच्चों की कस्टडी हमेशा के लिए मैंने अपने पास रख ली थी, ताकि वो हमेशा मेरे पास रहें। मुझे औरत ज़ात का ये रूप देखकर शदीद नफ़रत हो गई थी, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को किसी औरत के हाथों बर्बाद होता नहीं देखना चाहता था। तुम्हें यह हकीकत इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे हमारी कितनी ही औलादें हो जाएं, मगर इन दोनों की हक तलफी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के बच्चे कभी भी किसी भी महरूमी का शिकार हों। वो भारी दिल से बोल रहा था। इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। आप बेफिक्र रहें, मैं इन्हें हमेशा अपनी औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ रखूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है माँ-बाप के बगैर ज़िंदगी कैसी होती है। मैंने म वो महरूमियत सही है, हज़ारों के हुजूम में भी जब आप तन्हा होते हो। अरमान और शामिर लकी हैं कि इन्हें आपके जैसे वफ़ादार मिले हैं। आई रियली प्राउड ऑफ यू। वो बोझल दिल से बोलती, खुद से पेशकदमी करती, इसके सीने से लगी थी। इन बच्चों से ज़्यादा ये एहसास जानलेवा था कि इसका शौहर पहले किसी औरत का महरम रहा था, मगर आज अल्लाह इस पर मेहरबान हो गया था। इसका शौहर, इसका सबसे कीमती रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका था, सिर्फ़ इसका। आई लव यू। वो इसके गिर्द हिसार कायम करके इसके माथे पर बोसा देता। वो जज़्बात से चूर लहजे में बोल रहा था। बाबा, बाबा, 4 साला हादिया पूरे घर में भागती, अब दौड़ती-दौड़ती बाप के पास आई थी, जो बालकनी में खड़ा किसी से महज़ गुफ्तगू था। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को? इसने फ़ौरन इसे गोद में उठाया था, जो इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। यज़ान देख लें अपनी बेटी को, ये मुझे कितना तंग कर रही है। पीछे-पीछे आती तमकीनत को भी इसने अपने हिसार में लिया था, जो अपने वजूद को बामुश्किल सँभालती गहरे साँस ले रही थी। आराम से यार, कुछ तो अपनी हालत का ख़्याल करो। वो तो बच्ची है, तुम्हारा इस तरह से इसके पीछे भागना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इसके लहजे में फ़िक्र सिमट आई थी। 4 साल पहले अल्लाह ने इन्हें बेटी की नेमत से नवाज़ा था और अब वो नेमत के माँ-बाप बनने वाले थे। हाँ, तो देखें आप इसको, पहले सुबह-सुबह मेरा सारा मेकअप ख़राब किया और अब किचन में पानी फेंक दिया। अगर मैं बेध्यानी में फिसल जाती तो? इसने ज़रा गुस्से से शिकायत लगाई थी। डॉल, ये क्या कह रही हैं मम्मा? इस बार इसने बेटी को देखा, जो मासूम सा मुँह बनाए खड़ी थी। बाबा, मामा मुझे नूडल्स बनाकर नहीं दे रही हैं। इसने मासूम सा मुँह बनाया, जबकि वो इसे मुसलसल घूर रही थी। वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और आपको कहा है ना कि मामा का ख़्याल रखा करें। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप मामा को परेशान क्यों करती हैं? अब वो संजीदगी से मुखातिब था। सॉरी, इसने मुँह लटकाया। भला वो बाप को कैसे नाराज़ कर सकती है? अब मामा को परेशान नहीं करना और पानी फर्श पर नहीं गिराते मेरी जान, इस तरह चोट लग जाती है। वो सर हिला गई थी। अब आप जाएं और देखें अरमान भाई और शामिर भाई क्या कर रहे हैं। आप भी इनके साथ जाकर खेलो। 12 साला शामिर और अरमान की अपनी नन्ही परी में जान बसती थी, जो शैतान की भी नानी थी। भाई पढ़ रहे हैं तो इन्हें तंग मत करना, इसने तंबी ज़रूरी समझी। वो खुद भी कदम इसके पीछे बढ़ाए थे। आप कहाँ जा रही हैं मैडम? वो इसके कंधों के गिर्द हिसार बना था, रूम में लाया था और सुकून से बेड पर बिठाया था, जिसका अभी भी सांस फूला हुआ था। अल्लाह को मानो यार, देखो सांस कैसे फूल रही है। कुछ रहम करो मुझ पर। इस तरह भाग दौड़ ना किया करो। मेरा दिल हलक में आ जाता है। इसके लिए गिलास से पानी निकालता वो परेशान कुन लहजे में बोला था, तो वो मुस्कुरा कर जरा सी उठती इसके सीने से लगी थी। अपनी बेटी को समझाएं जरा, मुझे तंग कम किया करे। वो लाड से इसके सीने से लगी थी।
अभी कुछ दिनों में दूसरा आ जाएगा, ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर कैसे सँभालूँगी दोनों को? इसीलिए कह रहा था कि बस हमारे लिए अरमान, शामी और एक बेटी ही बहुत है। इस बार वो ज़रा नाक चढ़ा कर बोला, तो इसने गर्दन उठाकर घूरा था। हाँ, बस आपकी लाडली बहुत है, मेरा बेटा है ये, और देखिएगा ये मेरा कितना फर्माबरदार होगा। वो ज़रा फ़ख्र से बोली थी तो वो इसके चेहरे पर जो था बोलती बंद कर आ गया था। थैंक यू मुझे इतनी प्यारी सी फैमिली देने के लिए, मेरे दोनों बच्चों को अपनी औलाद समझने के लिए। वो मोहब्बत से बोल रहा था। यज़ान, ऐसा मत बोला करें, वो दोनों मेरे लिए हादिया से बढ़कर हैं। इसने ज़रा खफगी से कहा था। जानता हूँ मेरी जान, ये बताओ अब हनीमून पर कब जाना है? इसने शरारत से हमेशा वाला सवाल पूछा था। ज़िम्मेदारियाँ और बच्चों की ज़िम्मेदारी की वजह से वो दोनों कहीं जा ही नहीं सके थे। अलबत्ता वो बच्चों के साथ हर साल वेकेशंस पर ज़रूर जाते थे, मगर यज़ान इसके साथ कुछ वक़्त अकेले गुज़ारना चाहता था। जब आपके चारों बच्चे शादीशुदा बाल-बच्चों वाले हो जाएँगे, तो फिर हम भी आराम से हनीमून पर चले जाएँगे। वो मज़े से बोली तो इसका कहका बेसाख्ता था। नहीं भई, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। हम नेक्स्ट ईयर हनीमून पर जाएँगे। इसने जानकर छेड़ा। और बच्चे? इसने हैरत से पूछा। ये अपने दादो-अब्बू के पास रहेंगे। अरमान और शामी तो फिर भी रह जाएँगे। हादिया और ये नए साहब जो आने वाले हैं, डैड इन्हें कैसे सँभालेंगे? इसने खशमगीन निगाहों से घूरा था। भाई, अपनी डॉल को छोड़कर तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। अलबत्ता तुम अपने बेटे का खुद इंतज़ाम कर लेना। मैं कबाब में हड्डी बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तमकीनत ने मुँह बनाकर घूरा था। बस फिर डन हो गया। अगले साल हमारे चारों बच्चे हमारे साथ जाएँगे और हाँ, दोनों छोटों को सँभालने की ज़िम्मेदारी आपकी। वो इसके हिसार से निकलती शरारत से बोली थी। नो, वो एहतिजाजन चिल्लाया था जबकि वो खिलखिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। वो दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में बेहद खुश और मुतमईन थे। खत्म शुद।